ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سال 2019-20 کے بجٹ میں 20% کی کمی، ملک کی کساد بازاری کا اثر، بہبودی پروگراموں کو جاری رکھنے کا عزم، وزیر اعلیٰ نے پیش کیا بجٹ۔ اقلیتی بجٹ میں 700 کروڑ روپے کی کٹوتی، اراضیات فروخت کرنے حکومت کا فیصلہ، اسکیموں کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے 10,000 کروڑ روپے کا اسپیشل ڈیولپمنٹ فنڈ مختص۔ حیدرآباد کی قیمتی اراضیات فروخت نہ کریں، ڈبل بیڈ روم تعمیر کیے جائیں، KCR کی غلط پالیسی، اصل بجٹ میں 20% کی کمی، کانگریس کا الزام۔ وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر تشہیری مہم چلانے کا فیصلہ، اسکول، کالجز، سلم علاقوں اور اپارٹمنٹس میں صفائی سے متعلق شعور بیداری پروگرام، KTR کا اعلان۔ اور برقی میٹر لگانے کے لیے رشوت طلب کرنے والا لائن مین گرفتار، ACB کی کارروائی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاست تلنگانہ کے سالانہ بجٹ میں 20% کی کمی کر دی گئی ہے۔ ملک کی معاشی بدحالی، محاصل آمدنی میں کمی و دیگر موضوعات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی اسمبلی میں سال 2019-20 کا مکمل بجٹ پیش کیا۔ واضح ہے کہ پارلیمانی انتخابات کے سبب ریاستی حکومت نے گزشتہ مارچ میں مکمل بجٹ کے بجائے عبوری بجٹ پیش کیا تھا جو 1,82 کروڑ روپے تخمینہ کا تھا، لیکن اب اس نشانے میں 20% کی کمی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے مکمل سال کے لیے 1,46,000 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا ہے۔ ریاست کی محاصل آمدنی میں سوائے آبکاری کے تمام شعبے جات بشمول ٹرانسپورٹ، کمرشل ٹیکس میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ ملک کی موجودہ بدحال معاشی صورتحال کے باوجود ریاست تلنگانہ کی مالی حالت دیگر ریاستوں کے مقابلے میں بہتر ہے، جبکہ پنجاب، کرناٹک و ہریانہ منفی ترقی کے دہانے پر ہیں۔ انہوں نے اپنی بجٹ تقریر میں کسانوں، آبپاشی، برقی و فلاحی اسکیموں کو خاطر خواہ فنڈز فراہم کرنے کا بھی ذکر کیا۔ کسانوں کو ریتو بندھو اسکیم کے تحت سالانہ 10,000 روپے فی ایکڑ دیے جائیں گے۔ اس کے لیے 12,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کسانوں کے قرضوں کی معافی کے لیے 6,000 کروڑ روپے، ریتو بیمہ کے لیے 1,127، برقی سبسڈی کے لیے 8,000 کروڑ، فلاحی اسکیموں بشمول پنشن سبسڈی کے لیے 9,402 کروڑ روپے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران مرکزی حکومت نے ریاست سے 2,73,000 کروڑ روپے کے محاصل وصول کیے اور ریاست کو صرف 31,802 کروڑ کا فنڈ دیا گیا۔ صحت کی مرکزی اسکیم آیوشمان بھارت کو لاگو نہ کرنے کی دلیل پیش کرتے ہوئے KCR نے کہا کہ اس پر سالانہ 250 کروڑ روپے کا خرچ اور 26 لاکھ خاندانوں کو استفادے کی گنجائش ہے، جبکہ ریاستی صحت بیمہ آروگیہ شری پر سالانہ 1,336 کروڑ روپے کا خرچ 85,24,000 خاندانوں کو مستفید کیا جا رہا ہے۔ ریاست کی آمدنی میں نمایاں کمی کے لیے انہوں نے ملک کی معاشی بدحالی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ مرکزی حکومت کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ آٹو موبائل شعبے کی پیداوار 33% گھٹ گئی ہے، گاڑیوں کی فروخت میں 10.65% کی کمی ہوئی، اس شعبے میں 3.5 لاکھ افراد ملازمتوں سے محروم ہو گئے، فضائی و ریلوے مسافرین کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، روپیہ ڈالر کے مقابلے گرتا جا رہا ہے، ان حالات کا اثر GST پر ہو رہا ہے۔ KCR نے حکومت مقامی ادارے جات کو کہا کہ حکومت مقامی ادارے جات کو مستحکم کرنے اور مرکزی اسکیموں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بات کرتی ہے۔ پیش کردہ مکمل بجٹ میں
2044 करोड़ रुपए की फाजिल आमदनी और 24,081 करोड़ रुपए का मालियाती खसारा दिखाया गया। इस तरह ये रियासती बजट मजमूई खसारे और आमदनी की कमी को पेश करता है। मुल्क की मालियाती व माशी अबतर सूरत हाल के रियासत पर होने वाले असरात को इसका जिम्मेदार करार दिया गया है। बाद में इजलास को हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। रियासती हुकूमत के खजाने की हालत आमदनी 98 और खर्चा रुपया जैसी हो चुकी है। गुज़िश्ता साल से फाजिल बजट पेश करने वाली तेलंगाना रियासत ने इस बार भी फाजिल बजट पेश किया, लेकिन तमाम बहबूदी और दीगर प्रोग्रामों के बजट में कटौती करने पर वो मजबूर हुई, क्योंकि अबूरी बजट के मुकाबले मुकम्मल बजट 20% कम पेश किया गया। बजट की तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने अहम प्रोग्राम आसरा वज़ारत के लिए 9,402 करोड़ रुपए, किसानों के खर्च के लिए 6,000 करोड़, किसानों के इंश्योरेंस के लिए 1,137 करोड़, बरकी सब्सिडी 8,000 करोड़, चावल की सब्सिडी पर 2,287 करोड़, रायतू बंधु के लिए 12,000 करोड़ रुपए मख्तस किए, जबकि अक़लियती बहबूद का अबूरी बजट में 2,000 करोड़ रुपए मख्तस किया गया था। 6 माह के बाद भी निस्फ बजट खर्च नहीं किया गया, बल्कि 700 करोड़ रुपए का बजट कम कर दिया गया। अबूरी बजट और मुकम्मल बजट में सीधे सीधे 40,000 करोड़ का बजट कम हुआ है। इसकी भरपाई के बारे में हुकूमत ने जो फैसला लिया है वो काबिल सिताइश है। हुकूमत ने अराजी फरोख्त करते हुए 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड मख्तस करने का फैसला किया है। महकमे जाती तौर पर इस फंड के जरिए जरूरियात को पूरा किया जाएगा। पता चला है कि इस बार किसानों की कर्ज माफी स्कीम की रकम को हुकूमत ने रास किसानों के हवाले करने का फैसला किया है। इस बजट में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। इस सिलसिले में फाइनेंस सेक्रेटरी रामा कृष्ण राव ने गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा हालत का दिसंबर तक जायजा लिया जाएगा, उसके बाद ही टैक्स में इजाफे पर नजरसानी का फैसला किया जाएगा। फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया कि मरकजी हुकूमत के मुकाबले रियासती हुकूमत की शरह पैदावार ज्यादा है, लिहाजा इन हालात में तब्दीली आने के कवी इम्कानात हैं। ऐवान असम्बली में मजलिस को दूसरी बड़ी अक्सरियती जमात का ओहदा देते हुए मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी को अपोजिशन लीडर की नशिस्त अलॉट की गई है। अकबर ओवैसी की जगह पर कांग्रेस के भट्टी विक्रमार्का को सीट अलॉट की गई है। बजट इजलास से कबल ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में दाखिल हुए और उन्हें अलॉट करदा नई नशिस्त पर जाकर बैठ गए। जब भट्टी विक्रमार्का ऐवान में दाखिल हुए तो वो हैरान हो गए और उन्हें अलॉट करदा नशिस्त पर जा बैठे। इसके बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान में दाखिल होते ही अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और नए चीफ विप विनय भास्कर से अपोजिशन जमातों को वाकिफ करवाया। इससे पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव का असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्लू चारी ने खैर मकदम किया। उसके बाद वजीर आला ने कौंसिल के सदनशीन के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। उसके बाद स्पीकर से मुलाकात की। बाद में बजट पेश करने के लिए वजीर आला ऐवान में दाखिल हुए। कौंसिल में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बजट पेश करने से पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बाद में उन्होंने नायब सदनशीन विद्यासागर राव से मुलाकात की। उसके बाद बजट पेश किया गया। असेंबली की तारीख का यह पहला मौका है कि कायदे ऐवान व वजीर आला की नशिस्त के मद्दे मुकाबिल कायदे अपोजिशन की मख्तस नशिस्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल हुई है। उधर कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद की कीमती अराजी को फरोख्त न करें, बल्कि आवाम के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से हुकूमत तखमीना और असल बजट में 20-25% का फर्क रखते आई है, लेकिन इस बार तो तखमीना में ही 20% को कम कर दिया गया। हुकूमत गुज़िश्ता 8 महीनों से अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का कोई जिक्र तक नहीं कर रही है। अब पूरे मामले को मुल्क की कसाद बाजारी पर डाल दिया गया। उनका कहना था कि केसीआर अराजी फरोख्त करने की बात जहन से निकाल दें।
भट्टी ने कहा कि मियाँपुर में 816 एकड़ अराजी का मामला हल हो गया है, तो वहां पर गरीब आवाम के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएं। तेलंगाना बजट इजलास को 22 सितंबर तक चलाने का बीएस इजलास में फैसला किया गया। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास की सदारत में मुनक्किदा बीएस इजलास में वजीर आला के चंद्रशेखर राव, उमूर असम्बली के वजीर प्रशांत रेड्डी, वजीर फाइनेंस हरीश राव के अलावा अपोजिशन जमातों के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी और भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। बीएस इजलास में 14 सितंबर तक 22 सितंबर तक इजलास चलाने का फैसला किया गया। 14 था 15 सितंबर को आम बजट पर मुबाहस होंगे, उसके बाद मुतालबात ज़र पर मुबाहस होंगे। 22 सितंबर को इतवार के दिन तसर्रुफ बिल और दीगर सरकारी बिल्स को मंजूरी देने का फैसला किया गया। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने कहा कि शहर में मौजूद कचरे से मुतासरा 1000 मकामात से कचरे की निकासी करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। बलदिया के दफ्तर में वजीर सेहत के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए केटीआर ने वबाई अमराज से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। बाद में केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाएगी और अजीम तर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन का कैलेंडर कायम करने का फैसला लिया गया। इसके तहत वबाई अमराज और दीगर उमूर पर वक्त से पहले इक़दामात किए जाएंगे। केटीआर ने कहा कि मंगल के दिन से ही सुबह 5:30 बजे से कॉरपोरेटर्स और डिप्टी कमिश्नर्स, जोनल कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स और दीगर अमला फील्ड पर काम करते हुए अमराज से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी की मुहिम चलाएगा। कॉलेजेस, स्कूल्स, स्लम बस्तियों, अपार्टमेंट्स में शऊर बेदारी के इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। खास तौर पर घर घर जाकर अवाम को अमराज से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर से वाकिफ कराया जाएगा। बस्ती दवाखानों को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉलेजेस और स्कूल्स में लाजमी तौर पर वबाई अमराज से मुताल्लिक शऊर बेदारी को यकीनी बनाया जाएगा। शहर में 25 मेडिकल कैंप्स कायम किए जाएंगे। गणेश त्यौहार के पेश नजर गणेश पंडालों के पास सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है और साथ ही साथ सड़कों की मरम्मत की जाएगी। వాటిని యుద్ధ ప్రాతిపదికన తొలగించాలనే ఒక నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాం. ఇందులో భాగంగా మేయర్ గారు, కమిషనర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లందరూ కూడా ఉదయం 5:30-6 గంటలకే ఫీల్డ్ లో ఉండాలని చెప్పి కూడా వారికి సూచించడం జరిగింది. వారందరూ కూడా విస్తృతంగా పర్యటించాలని చెప్పి కూడా సూచించడం జరిగింది. అదే ఇతర మున్సిపాలిటీల్లో పాలక వర్గాలు లేవు కాబట్టి అక్కడ కమిషనర్లు కూడా విస్తృతంగా పర్యటించాలని చెప్పి కూడా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి సూచించడం కూడా జరిగింది. దీంతో పాటు రేపటి నుంచి హైదరాబాద్ మహానగరంలో ప్రతి డిప్యూటీ కమిషనర్ కూడా, అంటే మనకు 30 మంది ఉన్నారు, 6 జోన్లు ఉన్నాయి. జోనల్ కమిషనర్లు, అడిషనల్ కమిషనర్లు, అదే రకంగా డిప్యూటీ కమిషనర్లు అందరూ కూడా రోజుకి 3 అవగాహన సమావేశాలు, ఒకటి స్కూల్లో గాని కాలేజీలో గాని పిల్లల్లో కూడా అవగాహన పెంచే దిశగా నియంత్రణ నివారణకు సంబంధించి ఈ అంటువ్యాధులు, వైరల్ జ్వరాలకు సంబంధించి ఎందుకు వస్తున్నాయి, వాటిని ఏ రకంగా నివారించవచ్చు అనే దాని మీద కూడా రేపటి నుంచి 3 రకాల సమావేశాలు ఉంటాయి. ఒకటి కాలేజీ స్కూల్లో ఉంటుంది, రెండవది స్లమ్ లో ఉంటుంది, బస్తీలో ఉంటుంది, మూడవది అపార్ట్మెంట్లలో ఇంకా ఇతర కాలనీలో కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి సూచించడం జరిగింది. సమావేశాలకే పరిమితం కాకుండా డీసీలు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు గౌరవ కార్పొరేటర్ కూడా వారితో ఉంటారు, ప్రజాప్రతినిధి కూడా వారితో ఉంటారు. అక్కడ ఒక ఇంటిని కూడా సందర్శించి, ఆ ప్రాంతంలో ఒక ఇంటిని కూడా సందర్శించి వారికి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ దోమలు ఎందుకు వస్తా ఉన్నాయి, ఏ కారణం చేత వస్తున్నాయో మనం వారికి వివరించి, ఉదాహరణకి ఢిల్లీ మహానగరంలో ఒక మంచి క్యాంపెయిన్ చేస్తా ఉన్నారు. వారు చేస్తున్న ప్రచారం తరహాలోనే మన నగరంలో కూడా ఇందులో కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యంతో, అంటే ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే దీన్ని నివారించవచ్చు అనే ఒక ఎజెండాతో మనం రేపటి నుంచి ఆ కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. ఉదాహరణకి నేను పాత్రికేయ మిత్రులను కూడా సహకారం కోరుతా ఉన్నాను. రేపటి నుంచి నేను, నాతో పాటు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు, మేయర్ గారు, మేమందరం కూడా ఈ ప్రచారంలో భాగస్వాములు అవుతాం. మన ఇళ్లలో మనం నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవడం అనేది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఈ ప్రచారంలో. ముఖ్యంగా ఈ డెంగీని వ్యాపింపజేసే దోమలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మురికి నీరు నుంచి రావడం లేదు, అవి మంచినీరు నుంచే వస్తా ఉన్నాయి. మంచినీళ్ళ మీద స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ ఉంటే దానిలోంచి ఈ దోమలు వస్తా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటిని మనం
ఎదుర్కోవాలంటే, నియంత్రించాలి అంటే డెఫినెట్ గా అందరం కూడా చేయాలి. ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ లో కూడా మనం ఈ కార్యక్రమం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीर के दिन मुख्तलिफ आशुर खानों और अलावों का दौरा करते हुए शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया और ढट्टी का नजराना पेश किया। कायदे मजलिस ने अज़ा खान ज़हरा पहुंचे, जहां मुख्तलिफ मातमी ग्रोहान के नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। बीबी का अलावा दबीरपुरे में मजलिस के कायद ने ढट्टी का नजराना पेश किया। मुजाविर अलीउद्दीन आरिफ ने तबरुकात पेश किए। अकबरुद्दीन ने आशुर खाना हजरत अब्बास दीवानदोड़ी और बादशाही आशुर खाना मदीना सर्कल भी गए, जहां उनके हक में दुआएं की गई। कायदे मजलिस के हमरा मजलिस के रुकून काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर सोहेल खादरी और दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्र अब्बाल में तरक्की अता फरमा, उनकी औलाद के सरों पे सलामत रख, कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। हैदरी सलवा। इमारत मिलत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर तमाम हुस्माय मंजिल पंजशा पर मरकजी जलसे शहादत हज़रत हुसैन पीर नौ मुहर्रम बाद नमाज इशा मुकर्रर है। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा निगरान होंगे। मौलाना शेख ताहर हुस्सामी, मौलाना गौस मुहीउद्दीन हुस्सामी, मौलाना रज़ियुद्दीन रहमत हुस्सामी मुखातिब करेंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़्म होगा। आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की अपील की गई है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने खिदमात से मुताल्लिक़ मुकदमात की समाअत करते हुए सबकदोश अक़लियती मुलाजमीन को वज़ाए फ़वाइद की आजिलाना अदायगी को यकीनी बनाया। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद क़मरुद्दीन की सदारत में मुनक़्क़दा इजलास में सरकारी खिदमात के अलावा औक़ाफ़ी अराज़ियात व जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात सादिर किए गए। वजीफे पर सबकदोशी के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 2 अक़लियती ओहदेदारों को वज़ाए फ़वाइद जारी नहीं किए गए, जिस पर इंतज़ामिया ने अंदरून 2 माह वज़ाइफ की इजराई व बकायाजात की अदायगी का तयक़ुन दिया। टेकमाल मेदक की एक औक़ाफ़ी अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुक़दमे की समाअत की गई। एसओटी एलबी नगर और वनस्थलीपुरम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकली को नाकाम बना दिया। बाखबर इत्तला मिलने पर एसओटी एलबी नगर और वनस्थलीपुरम पुलिस की टीमों ने 6 अफराद सुधाकर हुसैन, चिरंजीवी, नागेश्वर राव, वेंकन्ना, सुरेश नायक को गिरफ्तार कर लिया। इन अफराद के कब्जे से 130 किलो गांजा, 1 गाड़ी, 12,000 रुपए की नकद रकम और 6 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया गया है। महकमे सिदारत और रिश्वत सुल्तानी ने शमसाबाद पिद्दा शाहपुर बरखी दफ्तर के लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक लाइनमैन काशी रामुलू ने तिरुपति रेड्डी से मीटर लगाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। पीर को काशी रामुलू को जाल बिछाकर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो 28,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। इस मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। डीसीपी शमसाबाद पुलिस ने अपनी टीम के साथ एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 269 के अतराफ वकनाफ के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कारखानों, दुकानों का अहाता करते हुए मुआयना किया। उनका ये दौरा इतवार के दिन हुए धमाके के पसपर्दा वजूहात का पता चलाना था कि आया कहीं दुकानों व कारखानों में धमाकू अशिया का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। यौम आशूरा और गणेश के त्यौहार के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही हैं।
हसास इलाकों में भी पुलिस की तरफ से गश्त बढ़ा दी गई है और जगह जगह तलाशी मुहिम में भी शिद्दत पैदा कर दी गई है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस राय की तरफ से ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि दहशतगर्दों की कुछ टोली जनूबी हिंद में कुछ सरगर्मियां अंजाम दी जा सकती हैं। इस सिलसिले में यह भी कहा गया कि गुजरात की साहिल से कुछ दहशतगर्द मुल्क में दाखिल हो सकते हैं और इस सिलसिले के पेश नजर ही पुलिस की तरफ से काफी चौकसी अख्तियार की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साल 2019-20 के बजट में 20% की कमी, मुल्क की कसाद बाजारी का असर, बहबूदी प्रोग्रामों को जारी रखने का अज़्म, वज़ीर आला ने पेश किया बजट। अक़लियती बजट में 700 करोड़ रुपए की कटौती, अराज़ियात फरोख्त करने हुकूमत का फैसला, स्कीमों को मौसर अंदाज में चलाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट फंड मख्तस। हैदराबाद की कीमती अराजियात फरोख्त न करें, डबल बेडरूम तामीर किए जाएं, केसीआर की गलत पॉलिसी, असल बजट में 20% की कमी, कांग्रेस का इल्जाम। वबाई अमराज से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम चलाने का फैसला, स्कूल, कॉलेजेस, स्लम इलाकों और अपार्टमेंट्स में सफाई से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम, केटीआर का ऐलान। और बरकी मीटर लगाने के लिए रुश्वत तलब करने वाला लाइनमैन गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।